Text number 3. कस्मिन् युगे प्रवृत्त्यं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः. Translation and purport by Srila Prabhupada. In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Krishna Dvayapana Vyas, a great sage, get the inspiration to compile this literature? तो श्रीमद् भागवतम कौन से पीरियड में कौन सी जगह पे शुरू किया गया था, क्यों किया गया? एंड फ्रॉम वेयर दिस कृष्ण द्वैपायन व्यास, कौन है ये कृष्ण द्वैपायन व्यास? हु इज दिस पर्सनालिटी? प्रभु जी व्यास देवी है। द्वैपायन हाँ, मतलब तो व्यास देव जी का दूसरा नाम है कृष्ण कृष्ण। द्वैपायन व्यासा। ये उनका दूसरा नाम है व्यास देव जी का। तो उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली लिटरेचर लिखने के लिए? कहाँ से वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं? आज कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जानकी जी पढ़िए। Srimad Bhagavatam is the special contribution of Srila Vyasa Deva. There are so many inquiries by the learned Saunaka Muni. It was known to them that Srila Vyasadeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to Mahabharata for the understanding of less intelligent women, Sudras, and fallen members of the family of twice born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane. So the enquiries are very intelligent and relevant. Hare Krishna. Hare Krishna. Because this Srimad Bhagavatam is the special contribution of Srila Vyasadeva. This is a special contribution. कहते ना ये स्पेशल चीज है। तो श्रीमद् भागवतम स्पेशल, ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल थिंग. There are so many inquiries by the learned Shaunaka Muni. It was known to them that Srila Vyasadeva had already explained the text of Vedas in various ways to Mahabharata for the understanding of less intelligent women, Shudras and fallen members. क्योंकि व्यासदेव जी ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था. 4 तरह के वेद, वेदांत सूत्र, महाभारता, उपनिषद, so many Vedic literature he has compiled for the understanding of less intelligent women, Shudras, fallen members, विजबंधु, उनके लिए. और जो श्रीमद् भागवतम है, that is transcendental to all of them. श्रीमद् भागवतम is beyond all this Vedic literature. Because Vedic literature में materialistic knowledge भी है, spiritual knowledge mixed होता है. Vedas, Veda means knowledge, everything is there, material, spiritual, everything is there. But Srimad Bhagavatam, there is no material knowledge. Only completely spiritual knowledge is there in Srimad Bhagavatam. That is transcendental to all of them. It is Amala Purana. There is no negativity, there is no inebriety in the Srimad Bhagavatam. Krishna is there. Because it has nothing to do with anything mundane. तो materialism से कोई लेना देना ही नहीं है. Completely spiritual है. And this is the juice of the Vedic literature. Is the crux of the Vedic literature. Is the cream of the Vedic knowledge. हम क्रीम कैसे बनाते हैं, उस तरह का क्रीम है. So the inquiries are very intelligent and relevant. जो भी सारे शौनक मुनि पूछ रहे हैं, नैमिषारण्य के सेजिस पूछ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट और रेलिवेंट इंक्वायरीज. Text number 4.
तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिन् निर्विकल्पकः एकान्तमतिर् उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवयते. Translation and purport by His Divine Grace Sri Narada Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. His Vyasadeva's son was a great devotee and equibalanced monist, whose mind was always concentrated on monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. तो व्यासदेव जी के सन जो है, कौन है सन? सुखदेव सुखदेव महाराज। सुखदेव प्रभु जी। सुखदेव Shukdev Goswami, not Shukdev. सुखदेव गोस्वामी The Shukdev Goswami is a great devotee, equibalanced monist. Equibalanced monist, whose mind was always concentrated on monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. Unexposed क्यों है वो? Why is unexposed? क्योंकि मौन प्रभु रहते थे ना, प्रभु मौन रहते थे। बहुत छोटे से थे जब वो चले गए थे। इसमें उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता था। एक इंसिडेंट भी है उनके बर्थ के बाद, जब वो व्यास जी उसको ढूंढते हैं और आवाज लगाते तो पेड़ों से आवाज आती है। बिकॉज प्रभु जी, क्योंकि वो हमेशा अवेयर रहते थे कि एक्चुअल में वो 16 इयर्स तक वो बाहर ही प्रभु जी नहीं वो निकले। हमेशा तो मॉडर्निज्म में जो है हमेशा वो कंसंट्रेट रहते थे, और दूसरा उनको ये डर था कि कहीं जो है कहीं उनका मन जो है वो माया में ना फंस जाए, माया में ना उलझ जाए। वो हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहते थे। और साथ में वो 16 इयर्स तक बाहर ही नहीं निकले थे। वो नहीं रहे थे ना, यस प्रभु माता में के वोम He नहीं रहे। was unexposed. There is no exposure. Unexposed. ना तो as a ignorant person, he appeared like an ignorant person. These are symptoms of a great, highly elevated person. He appeared like ignorant, but he is very, 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 very elevated personality. Yes, Janaki. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, मोनिस्ट क्या कौन होता है? मोनिस्ट वेदांतिस्ट, वेद मतलब जो एक उसमें बिलीव करता है, एक पाथ में बिलीव करता है। मोनोइस्ट तो वही होगा ना? means with is like a, you can say, on the knowledge only. ज्ञानी और मोनोइज्म भी उसी का एक डिफरेंट है कि जो उसी पाथ पे बिलीव करता है। Actually, Shukdev Goswami was impersonalist in the beginning. Then हाँ, later he was impersonalist in the beginning. Then later on he took to Krishna consciousness. Okay, he became personalist on form. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। Yes, Hare Krishna. Janaki Mataji. Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul, and thus he remained always alert, not to be trapped by the illusory energy. In the Bhagavad Gita, this alertness is very lucidly explained. The liberated soul and the conditioned soul have different engagements. The liberated soul is always engaged in the progressive path of spiritual attainment, which is something like a dream for the conditioned soul. The conditioned soul cannot imagine the actual engagements of the liberated soul, while the conditioned soul thus dreams about spiritual engagements. The liberated soul is awake. Similarly, the engagement of a conditioned soul appears to be a dream for the liberated soul. A conditioned soul and a liberated soul may apparently be on the same platform, but factually they are differently engaged, and their attention is always alert, either in sense enjoyment or in self-realization. The conditioned soul is absorbed in matter, whereas the liberated soul is completely indifferent to matter. This indifference is explained as follows. Hare Krishna. Hare Krishna.
So Shukdev Goswami was the liberated soul. He was on the Brahmabhuta platform from the beginning. And thus he remained always alert not to be trapped by the illusory energy. क्योंकि illusory energy क्या करती है? सुबोध अग्रवाल जी, तो कीर्ति कृष्ण प्रभु. What the illusory energy act do? What is the activity? प्रभु हमेशा हमें भ्रम में रखती है. तो इल्यूजरी हो गया. हाँ. एक्चुअल में दो तरह की इल्यूजन होती है. कौन कौन सी? There are two kinds of illusion. किसी को पता है? प्रभु जी माया आपने बताया तो था, माया दो तरह की होती है. एक तो माया. किसी को पता है कौन सी दो तरह की माया होती है? प्रभु जी विद्या माया और अविद्या माया. प्रक्षेपात्मिका और वो. यस यस यस. प्रक्षेपात्मिका और वो एक कवरिंग पोटेंसी और एक वो है क्या कहते हैं जो प्रक्षेपात्मिका. योग माया. प्रभु जी प्रक्षेपात्मिका क्या करती है सुकीर्ति प्रभु? प्रभु जी वो कवरिंग पोटेंसी होती है, उसमें जो जिसको बोला जाए, पूछा जाए, वही आंसर देगा. सुकीर्ति प्रभु बताएंगे. प्रभु वो that keeps on throwing out of the जब हम प्रयास करते हैं भगवान की तरफ जाने का, वो हमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी. शी विल थ्रो अस आउट ऑफ दैट. उसको बोलते हैं पुलिंग. उसको उसको पुलिंग पोटेंसी बोलते हैं. पुलिंग पोटेंसी. और दूसरी वाली कौन सी होती है सुकीर्ति प्रभु? एक आवरणात्मिका. कवरिंग पोटेंसी. वो क्या करती है? वो प्रभु एक मतलब इल्यूजन क्रिएट करती है. जैसे ये जो माया जगत है, इसको मतलब रियल क्रिएशन करते हैं. इट लुक्स लाइक रियल टू अस, लाइक जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो टेम्पररी रिलेशनशिप को ऐसा लगती है जैसे यही परमानेंट है. इल्यूजन क्रिएट करती है. उसको आवरणात्मिक शक्ति. बताइए प्रभु जी. ये जो कवरिंग पोटेंसी आपने एग्जांपल दिया था, सूर्य की रोशनी जब आ रही है तो हम अपने कमरे में बैठे हैं, पर्दों को कर लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है. जैसे भगवान और जीव के बीच में आवरण का काम करते हैं. एक जना बोले कि वो शमी जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए. हाँ शमी जी. यस प्रभु जी मिरर को जैसे मिट्टी से ढक लेता है, वैसे ही ये रियलिटी को हमारे पास आने नहीं देती, हमें इल्यूजन में रखती है. तो वो क्या है? उसको आवरणात्मक मींस आवरण करके रखती है. कवरिंग पोटेंसी. इसको कवरिंग पोटेंसी बोलते हैं. रियलिटी को देखने नहीं देती है. रियलिटी क्या है? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम ए सोल. इसको, इस ट्रुथ को कवर करके रखती है, आवरण करके रखती है. तो आवरणात्मिक शक्ति है ना, पर्दा डाल के रखती है, सूरज को देखने नहीं देती है. तो these two things are always, they are watching on us. Na? They are like a watchdogs. Maya is like a watchdog. Always they are looking for us. As soon as you are just little in alert, they will bounce on you and just collapse you. They will take you into her clutches. In the Bhagavad Gita, this alertness is very lucidly explained. अगर अलर्ट नहीं रहेंगे ना, रूपा जी एग्जांपल देते हैं, जब हम शेव कर रहे होते हैं, तो शेविंग जब कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट वे में शेव करते हैं. अगर थोड़ा सा अलर्टनेस डेविएट हो गए, इन अलर्ट हो गए, तो इमीडिएटली कट लग जाएगा, ब्लड निकलेगा. तो दिस अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक ना, Maya, we are walking on a sharp razor actually. Maya is just looking. When I a little fall down, I'll bounce on you. I'll attack you. The liberated soul and conditioned soul have different engagements. Liberated soul is always engaged in the progressive path
और स्पिरिचुअल अटेनमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें कौन बताएगा? निशा माता जी बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरेटेड सोल, कंडीशन सोल? प्रभु, लिबरेटेड मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस होकर जो सेवा करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और कंडीशन सोल मतलब जो अभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में है और वो लाइफ एंड बर्थ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उसमें कंडीशन सोल में क्या होता है और लिबरेटेड सोल में क्या होता है? प्रभु जी, लिबरेटेड सोल तो बैकुंठ चले जाएंगे, और कंडीशन सोल इसी जगत में रहेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास उनको लाइफ एंड बर्थ मिलता रहेगा। एक डिफेक्ट्स होते हैं कुछ कंडीशन सोल में, वो कौन से होते हैं? प्रभु जी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लस्ट। नहीं 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 नहीं, कौन बताएगा? हाथ मुझे खड़ा माफ करिए। करें। एक मिनट एक मिनट, जूही माता जी, what are the defects of a conditioned soul? और हाथ खड़ा करिए किसको पता है? तो जूही माता जी की जगह जूही माता जी की मम्मी सुन रही है। मम्मी मम्मी बता दें, उनके मम्मी बता देंगे। वो नहीं बता पाएंगे। किसको पता है? हाथ खड़ा करिए। अंजलि माता जी, प्रभु जी मैं बताऊं? अंजलि माता जी बताएंगे। अंजलि माता जी में क्या ऑफिस में है शायद? हाँ बताइए प्रभा माता जी। प्रभु जी, जो कंडीशन सोल है वो मैटर के थ्री जो मोड्स ऑफ द नेचर हैं इनसे बाउंडेड रहता है, नहीं नहीं नहीं, और हमेशा जो है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एंगेज रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। प्रभु जी मेरे को क्वेश्चन बताएंगे प्रभु आप? जी, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ ए कंडीशन सोल? प्रभु जी वो प्रभु जी मैं बॉडी को बताऊं? रियल समझता है और सोल की तरफ उसका ध्यान नहीं है, सेल्फ आत्मा की तरफ वो बॉडी को ही रियल मानने लग तो वो जाता है। 6 डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं आप? 6 नहीं है, 4 है। 4 है। हाँ यस 4 है। कौन से हैं वो? जो मतलब वो जो भी चीज है ना अपनी बॉडी से ही समझता है, ऐसे कुछ है ना। प्रभु जी उसपे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार होता है। प्रभु जी वो चीटिंग वाला तो नहीं, मिस्टेक वाला और हाँ चीटिंग कौन कौन बोल रहा है? कौन किसने बोला ये चीटिंग? कविता मत, कविता हाँ कविता सिर्फ अभी कविता जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। कविता जी आप बोलिए। मतलब ही कमिट्स मिस्टेक, यस वन इज दिस। इल्यूजन में रहता है, ठीक है, तो चीटिंग तीसरा? करता है, ठीक है। और सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहता है। नहीं नहीं, चौथा गलत बोला आपने, 3 तो ठीक प्रभु बोल ये दिया। आहार निद्रा माया मैथुन नहीं वाली तो नहीं, नहीं। अभी आपने कौन सा चीटिंग बोला, इल्यूजन बोला? चीटिंग बोला, मिस्टेक बोला, और इल्यूजन बोला। मिस्टेक बोला ठीक है, इल्यूजन बोला ठीक है, चीटिंग बोला ठीक है। चौथा उसका डिफेक्ट होता है। उसमें और प्रभु अहंकार जी होता है ना, फॉरगेटफुलनेस होती है उसमें। नहीं 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 नहीं। अहंकार चौथा होता है उसमें, चौथा सेंसेस में कंट्रोल नहीं रहता मतलब है। मान अपमान कंट्रोल के नहीं है, बाद मान। सेंसेस होती हैं, इम्परफेक्ट होती हैं कविता हाँ, जी। इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, तो याद कर लीजिए, बेसिक चीज है, किसी को आ ही नहीं रही है। बेसिक थिंग, 4 डिफेक्ट्स ऑफ कंडीशन सोल। पहला है वो मिस्टेक करता रहता है, टू एर इज ह्यूमन, है ना? मैन इज कमिटिंग मिस्टेक्स, टू एर इज ह्यूमन। दूसरा होता है वो छल करता रहता है, उसकी चीटिंग प्रोग्रेस, दूसरों को चीट करता रहता है। तीसरा होता है वो उसकी जो इल्यूजन में रहता है। इल्यूजन क्या है? अपने आप को शरीर मानता है ना? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसे सोचता है। और जो चौथा है वो है उसकी सेंसेस जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस। क्विज में आएगा ये क्वेश्चन। प्रभु जी लिबरेटेड सोल तो वही हुई आत्मा और मन शरीर से ऊपर है। तो समझ में आ गया सबको 4 डिफेक्ट्स का? जी याद कर जी लीजिए, प्रभु जी। भूलना नहीं प्रभु है जी ये चीज। लिबरेटेड सोल की डेफिनेशन भी बता दीजिए, जो मन और शरीर से ऊपर है। नहीं वो तो अभी बाकी है माता जी, अच्छा, डिस्कस कर। तो अभी जो है हमने वो कंडीशन सोल का बात किया, 4 डिफेक्ट्स हैं। और लिबरेटेड सोल में 4 डिफेक्ट्स नहीं होते हैं।
है ना। वो प्रभु जी हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लगा रहता है। हाँ, वो तीनों और मोड से ऊपर होता है, तीनों चारों मोड से डिफेक्ट से ऊपर ऊपर होता है। होता है ना। प्रभु जी वैसे तो आपने ये इसके जो बाउंडेड सोल है, कंडीशन सोल के सबसे पहला तो आपने यही बताया था कि मतलब वो तीनों ये जो मटेरियल वर्ल्ड अबाउट में द है वो थ्री तीनों मोड्स ऑफ से, नेचर होता है। हाँ 3 मोड्स तो ऑफ 3 नेचर से मोड्स बना और नो रहता है। डिफेक्ट, 0 डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं है उसके अंदर। ओके। नहीं कंडीशन सोल का बताया था ना आपने ये बात। हाँ, कंडीशन में होते हैं डिफेक्ट, लिबरेटेड में नहीं होते, ये डिफरेंस है। ओके जी। प्रभु ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये इसी हाँ, लिबरेटेड तो सोल के लिए। यस यस, तो एक और है कि लिबरेटेड सोल है वो ब्रह्मभूत होता है, और जो कंडीशन सोल है वो जीवभूत होता है ना। लिबरेटेड सोल मीन्स ब्रह्म, मीन्स ब्रह्मन में उसका दिमाग लगा होता है, सारा सारा दिमाग उसका स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा होता है। और जो कंडीशन सोल है उसका सारा सारा दिमाग शरीर में लगा होता है। दिस इज दैट्स व्हाई वी आर कंडीशन, वी आर जीव भूता। And Prabhupada is on liberated platform, Brahm Bhuta platform, soul, spiritual platform. So the liberated soul is always engaged in the progressive path of spiritual attainment. It is something like a dream for the conditioned soul. The कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है सेकंड लाइन में जो भी पढ़ी है मैंने? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? प्रोग्रेसिव। नो, बिंदु देव माता जी। मुझे कौन सी लाइन ऑलवेज, में कह रहे हैं? ऑलवेज। किसने बोला ऑलवेज? अनीता ने। हरि वो ऑलवेज, ये ऑलवेज वाला जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनन्य चिंतयन्तो माम कीर्तनीय सदा हरि, सदा अनन्य। तो भगवान ये ऑलवेज वाला चीज ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1-2 घंटे वाली चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 1 घंटे किया फिर वो हमेशा वो प्रोग्रेसिव पाथ में लगे रहते हैं। हमारे लोगों के लिए एक सपना है, ड्रीम है, बट वो हमेशा लगे हुए हैं। The conditioned soul cannot imagine the actual engagements of liberated soul. While the conditioned soul thus dreams about spiritual engagement, the liberated soul is awake. ना वो वैलेंटाइन पार्टी में जाते हैं, रात को 3-3 बजे आ रहे हैं, 4-4 बजे आ रहे हैं, और लिबरेटेड सोल उस समय उठ जाता है ना, 3:30 बजे उठ जाएगा, और वो पार्टी से आएगा, वो उठा होगा। That's what it is. Liberated soul is awake. They are dreaming. Similarly, the engagements of conditioned soul appears to be dream for the liberated soul. कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? व्हाट इज अ नाइट? प्रभु जी थोड़ा थोड़ा हाँ, श्लोक पता है? व्हाट इज अ प्रभु जी नाइट किस फॉर द बारे में, कंडीशन? किस बारे में है ये? व्हाट इज मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ। व्हाट इज अ नाइट फॉर द कंडीशन सोल इज अ डे फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। प्रभु जी चैप्टर ये में? तो ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, किसी को पता है? बिंदु दे माता जी। नहीं प्रभु जी नहीं याद आ रहा। प्रभु जी ये एनीबॉडी? नहीं दिमाग में, हमने ये इसमें कराया। नहीं। तो वो एक आध वर्ड बताओ। चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 69। चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर या 69। निशा, प्रभु जी या निशा सर्वभूतानाम। इसको हाँ, पढ़िए, उसका या निशा ट्रांसलेशन भी पढ़िए, सर्वभूतानाम। उसका श्लोक भी पढ़िए, ट्रांसलेशन भी पढ़िए। प्रभा माता या जी। निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसको क्या जब मतलब जब है? जब जब सारे जीवों के लिए रात होती है तो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रियलाइज्ड के लिए जागने का समय होता है। जो समय सभी जीवों के जागने का समय होता है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है।
तो ये हो रहा होता है, वो पार्टी से आते हैं, हम उठ के होते हैं, और हम जब सो जाते हैं तो उनकी पार्टी स्टार्ट होती है। लोग क्या है 10-10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे निकलते हैं घर से पार्टी के लिए। हाँ प्रभु जी, ये है तो श्लोक। हाँ, तो ये याद कर लेना इस श्लोक को। 2.69 सारे लोग याद कर लीजिए, क्विज में आ जाएगा ये। So this is a dream. A conditioned and liberated soul may apparently be on the same platform, but factually they are differently engaged, and their attention is always alert, either in sense enjoyment or in self life. यही अंतर है, दोनों अलर्ट होते हैं। जो कर्मी लोग हैं वो क्या पागल हैं, वो बहुत अलर्ट लोग हैं वो, बट पागलपन में अलर्ट है। और लिबरेटेड सोल है वो भी बहुत अलर्ट है, बट वो सेल्फ रियलाइजेशन में अलर्ट है। वो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, हम आत्मा साक्षात्कार कर रहे हैं, दोनों अलर्ट है, दोनों बिजी हैं। Busy, they are both are busy. They are busy in foolish activities, we are busy in the spiritual activities. This is the difference. The conditioned soul is absorbed in matter, whereas the liberated soul is completely indifferent to matter. This indifference is explained as follows. देखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे, बट उनका जो कार्य है, उनकी जो भावना है, उनकी जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, वो बिल्कुल अलग है, अलग होती है। नेक्स्ट नंबर 5, दृष्ट्वान्यन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नं देव्यो ह्रिया परिदद्धुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्त्वासति श्रीपुं विधान तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। Translation and purport by Srila Prabhupada. While Srila Vyasadeva was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth. Although Sri Vyasadeva himself was not naked, but they had not done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them, made no distinction between male and female. But the sage made such distinctions. ये तो पास्ट टाइम पता ही है आपको। जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ में ही थे 16 साल, तो व्यासदेव जी उनको बुला रहे हैं कि आप बाहर आइए, बाहर आइए, बट वो कहते कि बाहर में आके एंटेंगल नहीं होना चाहता इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक माया में, इसके कलमश में नहीं आना चाहता, तो मैं इधर ही बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन ध्यान कर रहा हूँ। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्यासदेव, Sukadeva Goswami came out and he is just running from there. He don't want to entangle in the family life. तो सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं और व्यासदेव जो उनके पिता हैं वो उसके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते क्या हो रहा है, एक नदी में जो यंग गर्ल्स हैं, डैमसेल्स हैं, वो नहा रही हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी निकलते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुखदेव गोस्वामी जो यंग हैं और उन्होंने कोई कपड़े नहीं डाले हुए बॉडी में, इज नेकेड फुली, और वो जब निकल रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता डैमसेल्स को। और व्यासदेव जब निकल रहे हैं, व्यासदेव जी इतने ओल्ड हो चुके हैं और पूरे उन्होंने बॉडी पूरी कवर की हुई है, उनको देख के जो डैमसेल्स हैं वो अपनी बॉडी को कवर कर रहे हैं। और व्यासदेव जी पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों, मेरा जो बेटा यंग निकल गया, मैं कुछ कपड़े नहीं डाले, यू आर कवरिंग, यू आर नॉट बॉदर्ड, एंड व्हाइल सीइंग मी यू आर कवरिंग, व्हाट इज दिस। तो डैमसेल्स क्या आंसर देती हैं, किसी को पता है? हमारी आवाज आ रही है? प्रभु जी वो कह रही है कि वो अपने शरीर से ऊपर हैं, उनको आत्मा का आभास है। आप डेली लाइफ जेंडर में न्यूट्रल है। प्यूरिफाइड हैं। एक्चुअल में वो बोल रही हैं, डैमसेल्स बोल रही हैं कि वो जेंडर परसेप्शन से ऊपर है। उनको ये पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन फीमेल है। वो सारों को आत्मा के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो ही इज ऑन दैट प्लेटफॉर्म।
Shukdev Goswami. No? That's why we are making. But a sage made such distinctions. Read करेंगे? हाँ जी, मैं करती हूँ. In the Bhagavad Gita 5.18, it is said that a learned sage looks equally on a learned and gentle Brahmana, a Khandala, a dog or a cow due to his spiritual vision. Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Thus, he did not see a male or female, he saw all living entities in different dress. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor, just as by looking at a child one can understand how innocent he is. Sukadeva Goswami was a young boy, 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Sukadeva Goswami was transcendental to sex relations, he appeared very innocent. The ladies, by their special qualifications, could sense this at once, and therefore they were not very concerned about him. But when his father passed, the ladies quickly dressed. The ladies were exactly like his children or grandchildren, yet they reacted to the presence of Vyasadeva according to the social custom because of Srila Vasudeva played the part of a householder. A householder has to distinguish between a male and female, otherwise he cannot be a householder. Hare Krishna. One should इतना ही कर. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. So Bhagavad Gita 5.18. What is that? Anybody can read the shloka 5.18? प्रभु जी ये है विद्या विनय वाला है ये तो. बोलिए, पढ़िए श्लोका. प्रभु जी ये याद है मुझे. वो ये है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव शैव पाके च पंडिता समदर्शिना. हाँ, तो इसमें क्या मतलब लिखा इसमें ये है? है कि जो विद्वान होते हैं, जो विनीत होते हैं, विनम्र साधु जो होते हैं, वो विद्वान हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं. उनको शरीर से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल आत्मा को देखते हैं कि सब में आत्मा एक ही है. तो ये जो है दैट इज कॉल्ड टॉप मोस्ट डिवोटी, इसको उत्तम अधिकारी बोलते हैं ना. ये फर्स्ट क्लास डिवोटी जो ऐसा समभाव. देख. तो ए लर्नेड सेज ना इज कॉल्ड ऑन अ ब्राह्मण प्लेटफॉर्म. श्री सुखदेव गोस्वामी अटेन दैट स्टेज. सुखदेव गोस्वामी एवली स्टेज पे ऑन दिस स्टेज. Thus he did not see a male or a female, he saw all living entities in different dress. तो सारे लोग तो हम आत्मा ही हैं, हमने अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग कपड़े डाले हुए हैं. किसी ने कुत्ते का कपड़ा डाला हुआ है, किसी ने बिल्ली का कपड़ा डाला हुआ है, किसी ने हिरन का कपड़ा डाला है, और किसी ने ह्यूमन बीइंग का कपड़ा डाला हुआ है. सारे कपड़े हैं हमारे ना. एक्चुअल आदमी तो अंदर है, आत्मा है. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor. Just as by looking at a child one can understand how innocent he is. तो उनके बॉडी लैंग्वेज उनको पता चल गया कि कौन है ये, है ना. वो कौन आ रहा है, कौन सी पर्सनालिटी है. तो बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटी है ना. ये तो महाजन है, ये तो ब्रह्मभूत है, बहुत एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है. से कोई बच्चे को देख के पता चलता है कितना भोला बच्चा है ये. Shukdev Goswami was a young boy, 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Shukdev Goswami was transcendental to sex relations, he appeared very innocent. But innocent, no कोई भी वो नहीं है, किसी तरह का वासना भाव ना. No intention. No, above all these things. The ladies, by their special qualification, could sense at once, and therefore they were not very concerned about him. But when his father passed, the lady quickly dressed. The ladies were exactly like his children or grandchildren. Yet they reacted to the presence of Vyasadeva according to social custom. Because Srila Vyasadeva played the part of a householder. So, गृहस्थ आश्रम में है ना. तो वो कस्टमरी है, कस्टमरी. आ रहे बड़े तो अपना अपना अपने बॉडी को कवर कर लेना है ना, क्योंकि वो बेटियां पोतियों के एज में आ रही हैं ना. दिस इज सोशल कस्टम बिकॉज ही प्लेइंग द grasta प्लेटफॉर्म, grasta रोल. A householder has to distinction between male and female.
तो ये सोशल कस्टम है ना। गृहस्थ को पता है कि वो मेल है ये फीमेल है, बिकॉज व्यासदेव जी वाज ऑन दैट प्लेटफॉर्म, बिकॉज ही इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ ए हाउस होल्डर, otherwise he cannot be householder. Yes. One should therefore attempt to know the distinction between body and soul without any attachment for male and female. As long as such distinction is there, one should not try to become a sannyasi like Sukadeva Goswami. At least theoretically, one must be convinced that a living entity is neither male nor female. The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. A liberated soul is above this perverted distinction. He does not distinguish between one living being and another. For him, they are all one and the same spirit. The perfection of the spiritual vision is the liberated state, and Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Srila Vyasadeva was also in the transcendental stage, but because he was in the householder's life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. Hare Krishna. So one should therefore attempt to know the distinction between Atma without any attachment for male and female. This is the attempt we should make. Without any attachment for male and female. As long as this distinction is there, one should not try to become a sannyasi. तक ये डिस्टिंक्शन है ना मेल फीमेल की, तब तक हमें सन्यासी बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट थ्योरेटिकली वन मस्ट बी कन्विंस्ड लिविंग एंटिटी इज नाइदर मेल और फीमेल. थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट कन्विंस हो जाओ कि ना तो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सारे आत्मा है. तो जो आउटवर्ड ड्रेस है, this is made of matter by material nature to attract the opposite sex and keep one entangled. तो ये सारा ये माया का खेल है. ये मेल है फीमेल है, अट्रैक्शन है. बस इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में आध्यात्मिक जगत में लव है, स्पिरिचुअल किंगडम में प्रेम है, और यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन. प्रभु जी, अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, द ऑपोजिट ऑफ लव. अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन. द ऑपोजिट ऑफ लव मीन्स लस्ट. लस्ट. यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में लस्ट है, यहाँ प्रेम नहीं है. इस जगत में प्रेम अगर करना है तो सिर्फ कृष्ण भगवान से हो सकता है, और किसी से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सारा काम है. क्योंकि यहाँ पर सेल्फिश नेचर, कोई सेल्फिश मोटिव है, उसके कारण काम होते हैं. अगर वो मोटिव क्लियर नहीं होता तो डाइवोर्स हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पर लव एग्जिस्ट नहीं करता है. लव अगर करना है तो वो कृष्ण भगवान, ये लव वर्ड सिर्फ कृष्णा के लिए अप्लाई होता है, और किसी के लिए लव नहीं अप्लाई होता है. तो पे ही लव हो सकता है, मटेरियलिस्टिक लेवल पे लव नहीं हो सकता. सो that's why this outward, this is you are a male, you are female for attraction, this is all in material world. Soul is above this perverted distinction. कि जो कंडीशन सोल है इसमें ही फंसा हुआ है मेल फीमेल, और लिबरेटेड सोल इससे ऊपर उठ चुका है. इट डज नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन वन लिविंग बीइंग एंड अनदर. For him, they are all one and the same spirit. The perfection of the spiritual vision is a liberated stage, and Srila Shukadeva Goswami attained that. वो वहाँ पर उस स्टेज पे ऊपर है. Srila Vyasadeva was also in the transcendental stage, but because he was on householder's life, he did not pretend to be liberated as a matter of custom. व्यासदेव जो है वो भगवान के अवतार हैं, बट वो वहाँ यहाँ पर वो अपने आप को वो नहीं मान रहे. हाँ, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है, तो एज ए मैटर ऑफ कस्टम वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं. ऑल्दो वो भी प्योर है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है, बट वो गृहस्थ आश्रम है, तो एज ए मैटर ऑफ कस्टम वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं. तो दिस इज पास टाइम ऑफ द लॉर्ड, दिस इज लीला ऑफ द लॉर्ड.
ओके, एनी क्वेश्चंस? तो हमको ये बताना है, अभी हम चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग से पहले जो कि कल जो है, कल संकीर्तन का प्रोग्राम है, तो हमें आप सारे लोग इनवाइटेड हैं और हमें वॉलंटियर्स चाहिए सेवा के लिए। तो कविता माता जी, हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। सोनम माता जी, आपका थोड़ा हमें वॉलंटियर सेवा चाहिए कल। टाइमिंग जो है, प्रभु जी, कहाँ कहाँ जाना होगा, आना होगा? अपने गुड़गांव के आश्रम में। अच्छा, पर सुबह मेरी बेटी का कल एथलेटिक मीट है, स्कूल में जाना है मुझे 8 से 12। देख लीजिए, अगर